dear friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the conditions for successful working of democracy. Like we studied the three conditions and we started with the fourth condition. According to Dr. Ambedkar, the fourth condition precedent for the successful working of democracy is the observation of constitutional morality. Many people seem to be very into about the constitutional. Example they gave about the जॉर्ज वाशिंगटन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. और लोगों ने उनको बोला कि आप फिर से इलेक्शन में खड़े रहो एंड वी वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. बट उसने बोला कि आप भूल रहे हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने क्यों बनाया है. वी मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वी डिड नॉट वांट अ हेरिडिटी मोनार्ची. वी डिड नॉट वांट अ हेरिडिटी रूल और अ डिक्टेटरशिप. देन moving towards the fifth condition. To Dr. Ambedkar, there is another factor which is very necessary in the working of democracy, and it is this, that in the name of democracy there must be no tyranny of the majority over minority. Sixth condition, Dr. Ambedkar thinks that democracy does not require the functioning of moral order in society. Somehow our political scientists have never considered this aspect of democracy. Ethics is something separated from politics. Lastly, Dr. Ambedkar viewed democracy requires public consent. There is no doubt about it that although there is injustice in every country, the injustice is not equally spread. There is somewhere the impact of injustice in every small. There are small against whom the impact is very great. Dr. Ambedkar cited the example of South America, right? Those people are suffering are Indians. वहाँ पे फिर यंग बॉयज़ यंग गर्ल्स इन सब लोगों ने साथ दिया और पब्लिक कंसाइंस हुआ. मतलब पब्लिक कंसाइंस यानी क्या, सब लोगों ने, अब मालूम है रॉन्ग हो रहा है तो सब लोगों ने उनका साथ दिया. डॉक्टर अम्बेडकर आफ्टर गोइंग टू द पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड proposed that there are most essential condition for the purpose of preserving democracy, things necessary for maintaining of democracy. By the time Dr. Ambedkar completed his observation on the constitution of free India, the inner emotions across to the extent that he came up with some of his reflection on the future of India. He remained the house on 26 January 1950 that India would be independent democratic country, according to which India from that day would have a government of people, by the government and for the government. But question again comes up in his mind was, what would happen to her democratic constitution? Will she be able to maintain it or will she lose it again? It is not that India did not have parliament or parliamentary procedure. It said to the House that we must maintain our democracy not merely in form but in fact also. For maintaining it, he suggested three things or device. These three things are as follow. Constitutional method. Constitutional method में क्या बोला है उसने? Constitutional method में उन्होंने बोला है, first thing he suggested was to achieve social and economic objective. Economic objective. It means according to him, he must adopt the bloody revolution method of revolution. It means we must go for the civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. But where constitution methods are open, there must be no justification for this unconditional method. Not to lay liberty at the feast of great men. See, अभी आपको लिबर्टी पूरे किसी एक इंसान के हाथ में नहीं देनी है. भले ही उसने बहुत अच्छा काम किया हो, सब किया हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ उसके हाथ में दे दो. ठीक है, थोड़ी बहुत पावर दे दो, थोड़ा बहुत दे दो, ठीक है, बट ऐसा करना गलत होगा. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, मेक अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी. The third thing, Dr. Ambedkar suggests that we must not contend with mere political democracy. See,
वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। सी, अपना जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको अपन ने सोशल डेमोक्रेसी भी बनाना चाहिए। Political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. See, political democracy cannot last unless वहाँ पे social democracy का एक base रहेगा। What does social democracy means? Social democracy यानी क्या? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principle of life. See, इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ जहाँ पे अपन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को एज अ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन अ ट्रिनिटी। सी, ये जो प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको अलग अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये तीनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हैं और एक दिन से एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. See, ये तीनों एक यूनियन फॉर्म करते हैं। तीनों में से किसी एक को भी छोड़ देना मतलब क्या होगा? इट वुड बी लाइक, तीनों में से किसी एक को भी छोड़ा तो क्या हो जाएगा? आपका डेमोक्रेसी खतरे में आता है। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी। सी, लिबर्टी आप इक्वालिटी से अलग नहीं कर सकते, ना ही इक्वालिटी आप अलग कर सकते हो लिबर्टी से। नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। सी, ना ही ये फ्रेटर्निटी, ना इक्वालिटी और लिबर्टी ये भी फ्रेटर्निटी से अलग नहीं हो सकती। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। सी, विदाउट लिबर्टी क्या है? लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. See, equality without liberty, it would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of thing. See, without fraternity and liberty, equality क्या है? Cannot become a natural course of thing. It would require a constable to enforce them. See, it would require a constable to enforce them. We must know we must begin by acknowledging the fact that there is complete absence of two things in society. See, अपने को एक फैक्ट देखना है कि ये दोनों चीज़ें सोसाइटी में नहीं रहती। One of this is equality. On the social plane, we have in India a society based on principle of graded inequality, which means elevation for some and degradation for other. On the economic plane, we have a society in which there are some who have immense wealth as well as who live in absence poverty. से on economic plane देखा तो अपना सोसाइटी में क्या है? किसी किसी के पास बहुत पैसा है, कोई कोई बहुत गरीब है and all. Moreover, for social democracy, recognition of principle of fraternity is essential. See, सोशल डेमोक्रेसी समझने के लिए क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी इज इसेंशियल। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस बीइंग वन पीपल। फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी एक बिलोंगिंग है, कॉमन ब्रदरहुड है कि बाबा हम सब इंडियंस हैं और अपन सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है एंड वी बिलोंग टू ओनली वन कंट्री। इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ। ये एक प्रिंसिपल है विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडिटी टू सोशल लाइफ. इट इज़ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव बिकॉज इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कास्ट. It is difficult thing to achieve because Indian society is based on caste, but we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. See, but we must overcome all these difficulties. ये सारी डिफ़िकल्टीज अपने को ओवरकम करनी है अगर अपन बिलोंग टू वन नेशन. For fraternity can be a fact only when there is a nation. See, fraternity can be a fact अगर एक ही नेशन रहा तो. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of pains. See, without fraternity,
equality and liberty will be no deeper than cost of pins. There are my reflection about the task lie ahead of us. अब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं there are reflection about the task lie ahead of us. The monopoly of political power in the hands of few to be removed very soon. See, the political power in the hands of few should be removed very soon. The downtrodden classes which are tired of being governed are impatient to govern themselves. See, the downtrodden classes which are tired of being governed are impatient to govern themselves. This urge for self-realization in the downtrodden classes must be allowed to devolve into a class struggle or class war. This urge for self-realization in the downtrodden classes must not be allowed to devolve into a class struggle or class war. Therefore, the sooner room is made for the realization of their aspiration. See, sooner, therefore, एक रूम बनाना. Therefore, there should be a space for some aspiration. The better for few, the better for the country. See, the better for few, the better for country. The better for the maintenance of its independence and the better for the continuance of its democratic structure. See, the better for the country, अगर कंट्री के लिए भलाई है तो इंडिपेंडेंस, कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए भी अच्छा है. जब कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा है तो एवरीथिंग विल बी ऑन बेटर वे. देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. Addressing a special session of student parliamentary in a college of Jalandhar, Dr. Ambedkar reinterpreted parliamentary democracy in India. See, addressing a special session मतलब उन्होंने बच्चों के लिए एक सेशन एड्रेस किया था इन द कॉलेज ऑफ जुलंधर. वहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया उसके बारे में बोला था. He said that during the discussion in the Constituent Assembly, there was a variety of opinion regarding the nature of the Constitution that we should have. See, he said, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में डिस्कस चल रहा था तो बहुत से अलग अलग ओपिनियन आए रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी शुड हैव. मतलब बहुत ज़्यादा ओपिनियन आए थे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, इसको लेके बहुत ज़्यादा ओपिनियन आए. सम प्रेफर्ड ब्रिटिश सिस्टम. सी, कुछ लोगों ने ब्रिटिश सिस्टम प्रेफर्ड किया, सम अमेरिकन सिस्टम. देयर वर अदर्स हु डिड नॉट वांट ईदर ऑफ दिस. कुछ ब्रिटिश सिस्टम, कुछ अमेरिकन सिस्टम, कुछ ऐसे भी थे उनको दोनों में नहीं चाहिए थे, ना ब्रिटिश सिस्टम चाहिए था ना अमेरिकन सिस्टम चाहिए था. बट आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन a large majority of members came to the conclusion that the system of the parliamentary government as it is in the British is best suited to our country. See, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, सब हुआ, तो बहुत से फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे बहुत से मेजॉरिटी लोगों ने कंक्लूड किया कि बाबा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ब्रिटिश के पास है वही अपने कंट्री के लिए इट द बेस्ट है. देयर आर सम सेक्शंस ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. सी, फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं पसंद आया. कम्युनिस्ट वांट्स द रशियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट. सी, जो कम्युनिस्ट थे उनको रशियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था. द सोशलिस्ट वेर ऑल्सो अगेंस्ट द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मुझे कम्युनिस्ट को रशियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था एंड द सोशलिस्ट उनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी. दे वर एजिटेटिंग अगेंस्ट इट. सी, वो लोग बहुत ज़्यादा एजिटेशन भी किया उन्होंने अगेंस्ट इट. दे हैव डिसाइडेड दैट इफ़ दे कम टू पावर दे विल मॉडिफाई इट. सी, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि बाबा अगर हम या कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कोई भी पावर में आ गए तो वो चेंज कर देंगे, गवर्नमेंट का फॉर्म ही चेंज कर देंगे, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया. येट डॉक्टर अम्बेडकर had strong support to the parliamentary system of government. See, फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, उनके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ही सेज
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अननोन टू अस एट प्रेजेंट। से आज अपन सब इसके अगेंस्ट इतना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपने को ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं मालूम है एक्चुअली कैसा काम करता है, क्या करता है, इसके बारे में अपने को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। इसलिए आज अपन इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। जब लोगों को पता चल जाएगा तो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन चला, बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ, सब कुछ बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया था। किसी को रशियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था, किसी को ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ही नहीं चाहिए था। बट डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उनको लोगों ने भी कुछ लोगों ने उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया। और उन्होंने बोला आज ये लोगों को डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मालूम है एट प्रेजेंट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा, पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन इंडिया। सी, जब लॉर्ड बुद्धा थे तब पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन इंडिया। जनरली द बुद्धिस्ट संघा फॉलो दिस प्रैक्टिस। सी, ये बुद्धिस्ट संघास जो है वो ये फॉलो करते थे प्रैक्टिस। अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट दिस एंटायर पास्ट हेरिटेज। अनफॉर्चुनेटली क्या है, अपन ने ये पूरा पास्ट हेरिटेज जो था अपना, वो अपन ने खो दिया है। Historians of India must unearth this question: why this parliamentary institution disappeared from our land? See, जो historians of India है उनको वो सवाल करते हैं, जब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बुद्धा के वक्त था तो अब अपने कंट्री से कहाँ से ये डिसअपियर हो गया, कहाँ चला गया, अब अपने कंट्री में क्यों नहीं है? Why this ancient civilization went to dogs? ये अपना ancient civilization क्यों चला गया? Why was India subjected to autocratic monarchy? क्यों इंडिया में autocratic monarchy आई? We were familiar with parliamentary institution. See, जब अपने को ये parliamentary form of government पता था तो एकदम से क्यों चला गया ये? We know about votes, voting committees and other things related to parliamentary institutions. See, अपने को वोट्स, वोटिंग कमेटी और अदर थिंग्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन अपने को अच्छे से पता है, राइट? अपने को वी आर फैमिली, अपने को पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन क्या है पता चल गया। उसके बाद वी आर अवेयर अबाउट द वोट, वोटिंग कमिटीज एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन। टुडे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अलाइन टू अस। तो आज अपने पास क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अलाइन टू अस। वी विल हैव टू एडुकेट द पब्लिक, we will have to tell them the benefit of parliamentary democracy and parliamentary system of government as well. पहले ये सब था ना, अभी बीच में से ये चला गया, तो आज अपने को लोगों को बोलना है, अपने को लोगों को इसके बारे में एडुकेट करना है। वी शुड एडुकेट द पब्लिक अबाउट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, और उसके बेनिफिट क्या है क्या नहीं, सब कुछ लोगों को समझा के देना है। देयर आर 3 मेन थिंग्स इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स नेगेशन ऑफ हेरिडिटरी रूल। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हेरिडिटरी रूल नहीं चलता। लाइक मेरे पापा पॉलिटिकल है तो ज़रूरी नहीं कि उनका बेटा भी पॉलिटिक्स में घुसे एंड ऑल। नो पर्सन कैन क्लेम टू बी अ हेरिडिटरी रूलर। और कोई पर्सन क्लेम नहीं कर सकता कि बाबा वो हेरिडिटरी रूलर वगैरह है बोल के। Whoever wants to rule must be elected by the people from time to time. जिसको भी रूल करना है इलेक्शन में खड़े रहो, लोगों ने आपको जीता दिया तो आप रूल करो, नहीं जिताया तो खत्म बात, यू आर लॉस्ट, राइट? सो it all depends upon the government. Firstly, parliament government means negation of hereditary rule. No person can claim to be a hereditary ruler. Whosoever wants to rule must be elected by the people from time to time. He must obtain the approval of the people. Hereditary rule has no sanction in the parliamentary system of government. हेरिडिटरी रूल के लिए गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई जगह नहीं, ना ही कोई सैंक्शन है इसमें। सेकेंडली, एनी लॉ एनी मेजर एप्लीकेबल टू द पीपल मस्ट बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ पीपल चूजन बाय द पीपल। सेकेंडली क्या बोल रहे हैं, एनी लॉ एनी मेजर एप्लीकेबल टू द पीपल
must be based on the advice of the people, chosen by the people. See, कुछ भी नया लॉ एप्लीकेबल करना है, चेंज करना है, तो वो लोगों के एडवाइस के हिसाब से ही होगा और लोग बोलेंगे तो ही होगा. No single individual can pursue the authority that he knows everything, that he can make the law and carry the parliament. See, कोई अकेला इंसान ये नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे लॉ पता है और मैं पार्लियामेंट कैसे करना है, गवर्नमेंट कैसे चलाना है, ये सब बोल सकता हूँ. नो वन कैन क्लेम दिस. द लॉ आर टू बी मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट. सी, लॉ कौन बनाएगा? लॉज आर टू बी मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट. दे आर द पीपल हु कैन एडवाइज द मैन इन हुज नेम द लॉ इज प्रोक्लेम्ड. ये लोग हैं जो लोगों की एडवाइस सुनते हैं और उस हिसाब से सब कुछ करते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोनार्चियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सी, मोनार्ची में क्या है, जो मैंने बोला कि बाबा मेरे हाथ में सब सत्ता है, जो मैं बोलूँगी वही करना पड़ेगा. डेमोक्रेटिक में क्या है, अपन सब मिलकर डिसीजन लेते हैं. इन मोनार्ची द अफेयर ऑफ द पीपल आर carried on in its the name of monarchy and under the authority of monarchy. See, in monarchy क्या है, the affair of the people are carried on in the name of monarchy and under the authority of monarchy. In democracy, the affair of the public are carried on in the name of the head of the state, but the laws and the executive measures are the authority on which the government is carried on. See, in democracy क्या है, the affair of the public are carried on in the name of the head of the state, और लॉज वगैरह क्या है, इधर अथॉरिटी ये सब लेती है जो गवर्नमेंट का भी ध्यान रखती है. द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द ट्यूटल हेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज कैरिड आउट थ्रू हिज नेम बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द ट्यूटरल हेड और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इसको क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो करते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर लोकसभा के मेंबर्स वगैरह क्या है, दे आर इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वो सब कुछ गवर्न करते हैं यहाँ पे. Thirdly and lastly, parliamentary system of government means that as stated period, those who want to advise the head of the state must have the confidence of the people in themselves renewed. Thirdly and lastly, parliamentary system of government means that at stated period, those who want to advise the head of the state must have confidence in people in themselves renewed. After 5 years, a legislator and the minister were to go back to people and obtain the fresh renewal of their confidence. See, हर 5 साल में अपने पास इलेक्शंस होते हैं, राइट. अपन ये नहीं बोल सकते कि बाबा लास्ट इलेक्शन में खड़ा है, मुझे जिता दिया, अब नहीं जिताने वाले, ऐसे नहीं. अगर आपने अच्छे से काम किया होगा तो आपको जिताएंगे लोग, अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो लोग आपको नहीं जिताएंगे. तो हर 5 साल के बाद आपको इलेक्शन में खड़ा ही होना पड़ेगा. अगर आपकी इच्छा है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा. तो डॉक्टर अंबेडकर, दिस इज़ नॉट इनफ. डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये बस नहीं था. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ मच मोर देन गवर्नमेंट बाय डिस्कशन. सी, डॉक्टर अंबेडकर के लिए इतना ही बस नहीं था. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये गवर्नमेंट के डिस्कशन से बहुत ज़्यादा है. देर आर द फिल्क्रम्स ऑन विच द मैकेनिज्म वर्क्स. सी, फिल्क्रम्स मतलब सर्टन रूल्स रेगुलेशन पिलर जैसे काम करते हैं. दैट एवरीथिंग गोज ऑन इन द प्रॉपर वर्क. दिस 2 pillars आर एन अपोजिशन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सी, दिस 2 pillars आर, अब ये 2 पिलर क्या है, an opposition and free and fair elections. For the last 20 or 30 years, we acclimatized to one single political party. See, for last 20 or 30 years, अपन एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं. We have nearly forgotten the necessity and importance of opposition for fair working of parliamentary democracy. See, अगर आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छे से काम करनी है तो अपोजिशन रहना ज़रूरी है. आपके अपोजिट में कोई ना कोई तो पार्टी रहना ज़रूरी है. अगर अपोजिट पार्टी रहेगी देन ओनली यू कैन गो ऑन विद द फेयर इलेक्शन. वी आर कंटिन्यूसली टोल्ड दैट अपोजिशन इज़ एन इविल. सी, अपने को कंटिन्यू सुनते हैं अपोजिशंस आर इविल.
जो अपोजिशन में रहते हैं वो पूरे रहते हैं, अपन कंटिन्यूअस सुनते हैं, बट एक्चुअल में ये सही है क्या? नहीं. Here again we are forgetting that. Here again we are forgetting what the past history has to teach us. फिर से अपन भूल रहे अपने हिस्ट्री में अपन ने क्या पढ़ा एंड ऑल. Moreover, one important thing in the parliamentary democracy is that people should know the other side. If there are two sides to the question, see, जैसे हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, उसी तरह लोगों को समझना चाहिए. इम्पॉर्टेंट ये डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी दैट पीपल शुड नो कि बाबा हर चीज़ की दो साइड्स है. हर तरह से आप अपोजिशन को गलत मानते हो, गलत बोलते हो, ये गलत है ना, वो भी ज़रूरी है आपने को. हेंस अ फंक्शनल अपोजिशन इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज अपोजिशन इज़ द की टू अ फ्री पॉलिटिकल लाइफ. सी, अगर आपको अच्छे से फंक्शन करना है तो अपोजिशन ज़रूरी है बिकॉज अपोजिशन इज़ द फ्री पॉलिटिकल लाइफ. नो डेमोक्रेसी कैन बी विदाउट इट. कोई भी डेमोक्रेसी उसके बिना नहीं चल सकती. ब्रिटेन एंड कनाडा, द टू exponent of parliamentary system of government, recognize this important fact, and in both countries the leader of the opposition is paid salary by the government. See, ब्रिटिश एंड कनाडा में तो क्या है, ये जो दोनों अपोजिट पार्टी रहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि उसके लीडर को दोनों को सैलरी पे की जाती है. गवर्नमेंट के तौर से उन लोगों को, गवर्नमेंट की तरफ से उनको सैलरी पे की जाती है, अपोजिट पार्टी के लीडर को, दोनों भी. In Dr. Ambedkar's view, free and fair elections are the other pillars on which parliamentary democracy rests. डॉक्टर अम्बेडकर के व्यू में क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये दोनों पिलर है ऑन विच ये अपना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलता है. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी टू द अदर इन अ पीसफुल मैनर एंड विदाउट एनी ब्लडशेड. फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूरी है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर. पावर ट्रांसफ़र करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूरी है ताकि एवरीथिंग गोज ऑन इन अ पीसफुल मैनर विदाउट एनी ब्लडशेड. हेंस इलेक्शन मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर. इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? इलेक्शंस मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर. पीपल मस्ट बी लेफ्ट टू देमसेल्फ टू चूज दोज हु दे वांट टू सेंड टू द लेजिस्लेशन. लोग फ्री रहने चाहिए, वो सिलेक्ट करने के लिए फ्री रहने चाहिए कि किसको उनको लेजिस्लेचर में भेजना है और किसको नहीं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस टू एज टू वेदर देयर इज एनी डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी इन पावर टू परमिट एनी अपोजिशन टू बी क्रिएटेड. सी, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस as to whether there is any desire on the party in power to permit any opposition to be created. Congress does not have any opposition. See, Congress के पास कोई opposition नहीं है. Congress is attempting to gather people of sundry views under one canopy. Congress is attempting to gather people of sundry views under one canopy. Congress is accepting help of multimillionaires and taking the side of big businesses at all crucial times. See, कांग्रेस क्या है? एक्सेप्टिंग हेल्प. कांग्रेस मल्टी बिलियनर्स की हेल्प ले रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की हेल्प ले रही है उनकी क्रूशल टाइम में. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस डू यू जेंटली थिंक दैट देयर इज एनी स्कोप फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू सक्सीड. अब इन सर्कमस्टेंसेस में आपको लगता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहेगी? We have find it our topic here. In next lecture we'll be starting about the Gandhism. If you have any doubt you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.